Farmers are the custodians of land, sowing the seeds for a better tomorrow. Hello, I am Muskan and welcome to Millennium Farmers of India Awards 2024. This event is organized by Krishi Jagran, co-hosted by ICAR and sponsored by Mahindra Tractors. What an incredible journey it's been, honoring the super amazing success stories of the incredible farmers who have reached heights in their agricultural world. And I am Amrita Chauhan. Gone those days where farming was a compulsion. लेकिन आज का किसान एक एंटरप्रेन्योर है, एक विजनरी है और एक मिलियनर है. This season proved that farming is no longer just a means of surviving. It's about thriving and leading a better future for tomorrow. Let's celebrate our heroes who had overcome the challenges and embraced the changes to leading the journey of brighter and a better or sustainable future in agriculture of India. So now, let's take a seat and have a moment to have an interview with the MC Dominic sir, who is the founder of the Krishi Jagran. Hello sir. Yes, Muskan. So sir, my first question would be, what was your actual vision and the mission behind launching MFOI? See, it was a dream come true. It's nothing vision or mission, I should say. Because see, what every human being want to do, they all want to achieve success. Success means financial success is the most important success. So if you ask me, I always say, when I was a small boy in my village, my dream was only that, to become the richest farmer of that village. That was in my mind somewhere, it kept on moving. And when I saw everywhere there is a recognition or appreciation for the wealth creation but not in agriculture, why don't we do that? That was a single point where we reached, and today we have started the Millennium Farmer of India. Also sir, there's another event called Mini MFI. So what is the reason behind launching it? Farming community is the biggest in India. If we have only a Millennium Farmer of India, it may not reach out to the last mile. See, what our dream is that every village should have a millionaire farmer immediately, and every district should have a billionaire farmer immediately. And in a few years, let me have huge number of millionaires farmers every nook and corner of the country. That's what we dream about. And sir, what do you think the impact MFI is creating in the agriculture community of India? You might have seen the happiness, the tears coming down from the farmers, the happiness that created not for the farmers just here, from Lakshadweep to Arunachal Pradesh, from Jammu and Kashmir to Gujarat, everywhere it was. And you see the global farming community have come down to part of it. How many organizations have come forward? Everyone, those who spoke here today, they say it should be a global movement where the farmers start enjoying the life. Is it not? That's what we look at. Thank you so much, sir. It's truly an honor to have you between us here and have you as a driving force behind our prestigious organization, Krishi Jagran. Thank you so much, sir. Let's have a talk with our visitors and get to know about their first-hand experience of MFOI 2024. I visited here last year also. The program is very well organized. We saw farmers being facilitated with different awards. We have seen so many stalls over here. There are so many products, organic products, nurseries, so many plants to see, different systems to see. As an agriculture student, I have learnt a lot. I have seen so many people advertising for so many different companies. Come here every time, we gain some of the other things. We increase our knowledge, and that is what is my experience about this. नमस्ते, मेरा नाम रविंद्र दिनकर राव जी पाटिल. मैं महाराष्ट्र से जलगांव जिले से आया हूँ. हम यहाँ MFO में हमको आमंत्रित किया कृषि जागरण से, और हम 3 दिन से दिल्ली में है, नई दिल्ली में. तो हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा. यहाँ का जो नियोजनबद्ध कार्यक्रम था और जो इन्होंने स्टॉल वगैरह जो लगाए, बेहतरीन किसान के अगले उन्नति के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है. यहाँ हम 1 तारीख से लेकर आज तक यहाँ 3 दिन से है, तो बहुत ही बढ़िया किसानों के लिए प्रेरणादायी है, मार्गदर्शक है. और ऐसे ही उपक्रम
चलते रहे तो किसान आगे बढ़ते रहेंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कृषि जागरण का और महिंद्रा ट्रैक्टर का। इन्होंने किसानों को एक हिम्मत बढ़ाई कि आगे चल के कुछ नया करके, नया टेक्नोलॉजी करके आप बढ़ सकते हैं। और जो प्रगत किसान शेतकरी है उनसे उनकी मुलाकात देख के, उनका प्रगति जो है कि हिती में देख के, हम जैसे किसानों का हमारा ग्रुप है, ये सभी हम 22-30 किसान लोग महाराष्ट्र से आए थे, सभी को अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज हमारे एक ग्रुप में सदस्य को जो सलगर करके सोलापुर के, उनको आज स्टेट लेवल का अवार्ड है, यहाँ से हम रुके हैं। तो बहुत ही मैं शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ कृषि जागरण को और महिंद्रा ट्रैक्टर को। धन्यवाद मैडम। आज जो कृषि का कार्यक्रम हुआ, इसके आयोजक को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरीके का कृषि का आयोजन देश में चलना चाहिए, हर प्रदेश में चलना चाहिए। और जितना ये कार्यक्रम हुआ, स्टॉल वालों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, दूर दूर से आए हुए, हर प्रांतों से आए हुए और विदेश से भी कुछ आए हुए किसान, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि सब लोग आ करके एकजुट हो करके ये इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया। और उम्मीद मैं करता हूँ कि ऐसा कार्यक्रम पूरे देश में हर प्रांतों में चलना चाहिए। इसी के लिए धन्यवाद। मैं सुनील सिंह यादव, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। आज हमारे साथ मौजूद हैं रिचेस्ट फार्मर ऑफ इंडिया, जो न केवल रिचेस्ट फार्मर ऑफ इंडिया है बल्कि महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, नीतू बहन पटेल। आइए चलिए जानते हैं उनकी सक्सेस की स्टोरी खुद उनके मुंह से। तो आप मुझे बताइए कि किस तरीके से आपने अपनी मेहनत को सफलता में बदला। मेहनत शब्द जो आपने बोला ना, तो मैंने कभी जो 22 ईयर काम किया उसमें कभी रात और दिन नहीं देखा। अभी मुझे मेरी टीम से भी कई लोग कभी पूछते हैं कि आप इतना जल्दी क्यों जाग जाते हो। मैं देखो जिस तरीके से अपना ज़मीन के हालात है, जिस तरीके से अपनी फार्मिंग के हालात है और जिस तरीके से फार्मर जो है वो सफ़र कर रहा है, तो कई सारी जो कमियां हैं उसमें सीखना, समझना, प्रोजेक्ट को सफल करना, काफ़ी सारी चीज़ों पे ध्यान रख के काम करने की बहुत ज़रूरत है। और मैं सुबह 3:30-4 बजे जाग जाती हूँ। जब सब लोग जागते हैं तो मेरा एक पाली का काम पूरा हो जाता है। मैं इसलिए ऐसा करती हूँ कि सब देख के, जैसे मेरे गुरुजी की बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले करी, तो उनके साथ मैंने जब प्रवास किया तो एक बार वो राधनपुर के, गुजरात का एक राधनपुर एरिया है, वहाँ मुझे लेके गए थे। तो वो ज़मीन का आज से 12-13 साल पहले जो मैंने हालत देखा था, उस टाइम पे मुझे फार्मर का और ज़मीन का हालत देख के नींद नहीं आई थी। और उसी टाइम से अभी तक जो हम काम कर रहे हैं, जो हमने गुरुजी से के साथ रह के सीखा, समझा, वो हर चीज़ को ज़मीन पे कैसे लाए, सोइल को रिजनरेट कैसे करें, क्रॉप को केयर कैसे करें, हार्वेस्ट कैसे करें, फिर उनका प्रोसेसिंग कैसे करें, वैल्यूडेशन कैसे करें, हर चीज़ को सीखने के लिए, समझने के लिए हमने बहुत मेहनत किया। और हर चीज़ को, ऐसा नहीं कि मैं हर चीज़ में एक्सपर्ट हूँ। मैंने एक ऐसा मेहनत में एक ऐसा एक टीम बनाया कि जो हर चीज़ अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, उसमें कोई सोइल में एक्सपर्ट है, कोई पानी पे एक्सपर्ट है, कोई फॉरेस्ट पे एक्सपर्ट है, कोई वैल्यूडेशन पे एक्सपर्ट है। तो ऐसे क्लस्टर बना के हमने जो 20 साल तक सीखा, समझा, कई सारी संघर्ष भी आए, कई सारी नेगेटिविटी भी सामने आई, कई जगह पे लॉस भी किया। कभी कभी कोई समझ नहीं थी कि इस चीज़ को क्या करे, कैसे करे, कोई समझाने वाला नहीं था, उसी टाइम पे भी काफ़ी सारा लॉस किया। तो 18-20 साल का जो जर्नी रहा, उसके बाद जो हमने 2020 के बाद सजीवन लैब जब शुरू किया, वो स्टार्टअप है। तो उस स्टार्टअप को इंडिग्राम लैब जो है, इंक्यूबेटर सेंटर है भारत सरकार का, और दिल्ली बेस है। उनके जो फाउंडर है सुनील भाई खेरनार है, और उसने हमें गाइडेंस दिया कि आपका 20 साल का मेहनत है, उनको स्ट्रक्चर आप कैसे करो, आप उनको स्ट्रक्चर करके आगे कैसे लेके जाओ। तो उसने पूरा एंड टू एंड गाइडेंस दिया, समझाया, सिखाया। और वो जो 20 साल का मेहनत था, उनको जब हमने स्ट्रक्चर किया, तो हमने जो स्केल था, वो स्केल हमने काफ़ी सारी कंपनीज के साथ काम करके देखा। फॉर एग्जांपल आज हम बायोगैस की काफ़ी सारी कार्बन कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, हम सोइल ऑर्गेनिक कार्बन की काफ़ी सारी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, हम स्मोकलेस स्टोव में काम कर रहे हैं, जो प्रदूषण है उनको कम करें। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके हमने जो 20 साल समझा था, सीखा था, उनको स्ट्रक्चर करके मेहनत को जो है सफलता में कन्वर्ट किया। तो आपने हमारे दर्शकों को आज इतना बड़ा मैसेज दिया कि आप कभी घड़ी के हिसाब से नहीं चले, घड़ी को आपने अपने हिसाब से चलाया। धन्यवाद जो आज आपने महिलाओं का कद इतने से इतना कर दिया है। थैंक यू।
आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिनकी कहानी किसी एक इंस्पिरेशन से कम नहीं है। आज हम मौजूद हैं इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट फार्मर्स के साथ, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके और उनकी कहानी के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। तो सर पहले हमें अपना नाम बताइए और थोड़ा सा अपनी कहानी के बारे में बताइए। मेरा नाम युवराज है, युवराज परिहार। मैं यूपी के आगरा जिले से आता हूँ। आगरा के पास ही मेरा गांव है बांगुरी। मैं पुश्तैनी वहीं का निवासी हूँ और मैं लगभग 22 वर्ष से खेती से जुड़ा हुआ हूँ। और एक बड़ी बात यह है कि मेरे फादर डॉक्टर हैं। सामान्य तौर पर डॉक्टर के बेटे खेती नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं खेती से जुड़ा हुआ हूँ। और सच बताऊँ तो मैं मिलेनियर फार्मर या रिचेस्ट फार्मर कितना हूँ मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इंडिया का हैप्पीएस्ट फार्मर हूँ जो अपने काम से, अपने पैसे से बहुत खुश हूँ। एंड मुझे धन्यवाद देता हूँ मैं प्रभु का कि उन्होंने मुझे ऐसे माहौल में पैदा किया कि मैं अपने आप को एक किसान कह सकूँ। तो यही मेरा एक छोटा सा परिचय है। मतलब सर ने वाकई इस बात को प्रूव कर दिया कि हमेशा एक फार्मर का बेटा फार्मर ही क्यों बने, एक डॉक्टर का बेटा भी तो फार्मर बन सकता है ना। जी बिल्कुल, सामान्य तौर पे यही कहा जाता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है और इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, लेकिन किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति का बेटा किसान बनना नहीं चाहता है। और कहीं न कहीं ये बात मेरे दिमाग में भी रहती थी जब मैं पढ़ रहा था, और मैं कई बार सोचता भी था कि मैं क्यों ना खेती बाड़ी करूँ। लेकिन जब मैं पढ़ाई मैंने पूरी की, कुछ टाइम मैंने MNC में काम भी किया और उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि मैं शायद जॉब के लिए नहीं बना हूँ। तो बैक टू पवेलियन घर लौट के आया और MNC की वाइट कलर जॉब छोड़ी। आज मेरे साथ के लोग हैं और वो कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई MD है, कोई कुछ किसी पोस्ट पे है, लेकिन वो पैसे हो सकता है शायद ज़्यादा कमा लें, बट खुश मैं उनसे ज़्यादा हूँ। तो सर जब जैसे आपने बताया कि आपके फादर साहब डॉक्टर थे, आपने भी MNC की वाइट कॉलर जॉब छोड़ी, तो उस टाइम सोसाइटी ने भी तो कुछ चीज़ें बोली होंगी, तो आपने उस चीज़ को कैसे ओवरकम करा? बिकॉज आज के जनरेशन में बहुत से हमारे यूथ्स हैं जो कई बार अपने पैशन को, अपनी पसंदीदा चीज़ों को छोड़ के समाज की चीज़ों की वजह से दबाव में आकर कुछ और चीज़ चुन लेते हैं जिससे वो खुश नहीं होते हैं। आपने शायद यहाँ पे हमारे यहाँ प्रोफेसर SP सिंह बघेल जो मिनिस्टर हैं सेंटर में, वो आए थे और उन्होंने अपने स्पीच में कहा था कि जो लोग यहाँ पे आज मिलेनियर अवार्ड से सम्मानित हो रहे हैं, एक टाइम ऐसा रहा होगा कि उनको भी लोगों ने कहा होगा ये तो पागल है, क्रैक है। तो ये बिल्कुल सही बात है। और मुझे भी काफ़ी सारे लोगों ने उस टाइम पे कहा कि आप खेती बाड़ी करोगे यहीं के यहीं रह जाओगे और आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन प्रभु का साथ था और मेरे लोगों का प्यार था, मेरे परिवार का माहौल, मेरे बड़े भैया का सपोर्ट जो कि मेरे लिए बिल्कुल राम के जैसे हैं, और उन सबका साथ ऐसा रहा कि बढ़ते गए और फिर चीज़ें मल्टीपल होती गई। खेती बाड़ी से फिर हम लोग एजुकेशन सेक्टर में आए, फिर वेयर हाउसेज में आए, कोल्ड स्टोरेज में आए, अभी मिलिंग कर रहे हैं। तो लगातार चीज़ें बदलती गई और चीज़ें अच्छी होती गई। तो शायद जो लोग एक टाइम पे उनको अच्छा नहीं लग रहा था मेरा यहाँ पे आना, शायद आज वो भी खुश होंगे। और सर जैसे कि हर जगत के जो लोग होते हैं, जैसे फिल्म जगत के लोग हुए, सिंगिंग जगत के हुए, उन सबको अवार्ड दिया जाता है, लेकिन फार्मर्स एक तरीके से अनसंग हीरोज़ होते हैं हमारे इंडिया के। तो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया और आपको भी उस प्लेटफॉर्म पे सम्मानित किया गया, तो आपको उस बारे में क्या कहना है? मैंने अपने स्पीच में भी ये बात कही थी कि ये मुझे लगता है कि अवार्ड से मुझे नहीं मिला है, मेरे जैसे युवाओं को जो काफ़ी लंबा समय यहाँ गुजार चुके हैं, और उनको भी ये सबके लिए अवार्ड है। ये देश के हर किसान के लिए अवार्ड है, हर उस युवा के लिए अवार्ड है जो खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ मेरा अवार्ड नहीं है। कृषि जागरण ने बहुत बड़ा काम किया है और मैं अपने 80 करोड़ किसानों की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक सभी किसानों का जो सम्मान रखा, यहाँ बुलाया, सम्मान रखा और एक सोसाइटी को एक मैसेज दिया कि यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग खेतीबाड़ी कर रहे हैं, वो भी चैन से खा रहे हैं, वो भी चैन से काम कर रहे हैं, वो भी थोड़े से साफ़ कपड़े पहन लेते हैं। तो ये दिखाने का मौका और कहने का मौका मिला। इसके लिए कृषि जागरण का, ICAR का, कृषि मंत्रालय का, PMO का, सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी सर कि आप हमारे बीच आए, हमारी जनता से इतनी अच्छी बातें कही और अपने वैल्यूएबल इंसाइट शेयर करें। आपका यहाँ होना ही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। थैंक यू सो मच। तो आज हमारे साथ हैं रेनू सांगवान जी। तो मैम आपको अवार्ड मिला गया है, आप वन ऑफ द रिचेस्ट फार्मर हैं इंडिया की, आपको कैसा लग रहा है पहले मुझे ये बताइए। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, पता नहीं खुशी की जाहिर कैसे करूं। हाँ जी। तो मैम आप क्या हमें बता सकते हैं कि इस सक्सेस के पीछे, इस मेहनत के पीछे मतलब आपने क्या क्या स्ट्रगल देखे हैं और आपने कितनी चीज़ों का सामना किया है आपकी इस जर्नी में?
मैडम संघर्ष तो इतना रहा है कि पूरा अगर मैं सुनाने चलूँ तो सुबह हो जाएगी, लेकिन बोल नहीं सकूँगी इतना, सुबह हो जाएगी। संघर्ष काफ़ी रहा है, काफ़ी हादसे हुए हैं, बहुत ही मतलब यूँ मानो कि सारा संघर्ष का निचोड़ आज इस अवार्ड का मेरे को मिल के सारा भूल गई हूँ। तो मैम आप दूसरी फीमेल फार्मर्स को, दूसरी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से मतलब इस सक्सेस को हासिल करें? महिलाओं को जी आगे बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। अपने गांव का विकास होगा, अपने घर का होगा, अपने परिवार का होगा। गांव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। Over the past few days, we have seen how these millionaire farmers have redefined what success in agricultural field looks like. So on that note, MFOI 2024 comes to a conclusion. But don't just leave yet, as the nominations for 2025 MFOI are opening from today itself. The categories will be even more, the awards will be more, and the delegates will be even better. So we can say that the MFOI Awards 2025, even the bigger, the better, to the brighter and sustainable future, driven by the hands which feeds us. Good night and see you next time.